Dear students, on your demand, I am posting you the new story, the story Sparrows. The name of the story is Sparrows. This is third story on your textbook, A Panorama of Life. Let's read the very beautiful and very meaningful story, The Sparrows. बेटे सब तो पहला as you know Sparrows एक symbolical name है, एक चिन्ह जिहड़ा उहदे नां ते K.A. Abbas who is Indian writer in English जिहड़ा कि भारत दा राइटर सी, स्क्रीन प्ले राइटर भी सी, इहदियां कई पिक्चर्स भी बणियां इहदियां स्टोरीज़ ते बड़ी बहुत ही वधिया स्टोरी हैगी है। इहदे विच मैं तुहानूं सब तो पहला दसदी हां देयर इज़ मेन कैरेक्टर दैट इज़ रहीम खान। एक मुहम्मदन कैरेक्टर हैगा आ, मुस्लिम कैरेक्टर हैगा जिहदा नाम रहीम खान हैगा। K.A. Abbas जिहड़ा हैगा उन्हें बिफोर इंडिपेंडेंस से स्टोरी लिखी सी जदों भारत ते पाकिस्तान दा विभाजन नहीं होया सी। देयर वाज नो पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ही रोट दिस स्टोरी दैन। This is very interesting story, students. There is a main character in the story named Rahim Khan. उदा नाम रहीम खान हैगा। He is very cheerful boy in his youth. मैं थोनू स्टोरी नाल नाल समझावांगी, नाल थोनू टेक्स्ट भी कोट करांगी। वो जिहड़ा कैरेक्टर हैगा बड़ा cheerful boy हैगा अपनी जवानी दे विच, बड़ा ही खूबसूरत मुंडा मुसलमानां दा, बहुत ही वधिया एथलीट हैगा, फाउंड ऑफ स्पोर्ट्स। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कैरेक्टर डिवेलप करना यही चीज़ां विच आणियां ने। वो खेडां दा बड़ा शौकीन हैगा। ही इज़ फाइन एथलीट, वो एक वधिया एथलीट हैगा। रैसलिंग दे विच, इन रैसलिंग एंड इन कबड्डी दे विच एंड इन डाइविंग ते गोता लाउण दे विच ही हैड नो मैच इन होल विलेज। पूरे पिंड दे विच उसदा कोई भी मैच नहीं हैगा। ही हैड एन इंटेंस डिज़ायर। जदों जवान सी ओदियां एक दो ख्वाहिशां सी। एक कहानी विच मेन क्वेश्चन वार वार अकर हुंदा है कि जिहड़ा ओदियां किहड़ियां दो ख्वाहिशां सी। सब तो पहलां जदों वो यंग सीगा ते उदों की सीगा, मैं तुहानूं नाल ही टैक्सट दे विचों कोट करदी हैगी आ। लव विद ए गर्ल नेम्ड राधा। ਉਹਦਾ राधा ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਧਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਗਰਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 141 ਤੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਥੋ ਟੈਕਸਟ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਰਾਧਾ द डॉटर ऑफ रामचरण द विलेज बानिया। पिंड का जिहड़ा बानिया सी ओदी बेटी सी राधा ते ओदे डैड दा नाम सीगा रामचरण। ही थॉट ही हैड फाउंड सोलमेट। रहीम खान नूं उन्होंने मिल के इवें लग्या कि जिवें ओदी आत्मा दा साथी मिल गया होवे। ही हैड फस्ट नोटिस हिम हर वॉचिंग एट द रेसलिंग मैच एंड इट हैड बीन द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ वैन स्टैंडिंग अप आफ्टर vanquishing his adversary. He had found Radha looking at him with the light of love in her eyes. After that there had been a few brief and furtive meetings when he, unlettered but romantic youth, had declared his love in passionate though halting words. But his parents had killed both his ambitions. ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇਛਾਵਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੂਰਿੰਗ ਸਰਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫਾਈਨ ਐਥਲੀਟ, ਗੁੱਡ ਇਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਇਨ ਕਬੱਡੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਇਨ ਡਾਈਵਿੰਗ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਟੂਰਿੰਗ ਸਰਕਸ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੇਸਟ ਹੈਗਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। पेज 141 ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਸ ਵਰਕ ਵਾਸ ਟੂ ਲੋਲੀ ਐਂਡ ਇਮੋਰਲ ਫॉर द ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪੀਜ਼ੈਂਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬਦਨੂਮਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਜੁਆਇਨ ਟੂਰਿੰਗ ਸਰਕਸ। ਟੂਰਿੰਗ ਸਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਸ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਰਕਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਐਨੀਵੇ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਐਂਡ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਹੈਡ ਟਿਲਡ ਦ ਲੈਂਡ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਟੂ ਹੈਡ
ਡੂ ਇਟ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਫॉर ਮੈਰਿੰਗ ਰਾਧਾ ए हिंदू ए काफिर द वेरी ਆਈਡੀਆ ਵਾਸ ਇਨਫੇਮਸ ਐਂਡ ਇਰਰਿਲੀਜੀਅਸ। ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਬਰਖਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰਾਧਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਵਿਟ ਯੂਥਫੁਲ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਟੋਇਡ ਵਿਦ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਓਪਨ ਰਿਬੈਲੀਅਨ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੀ ਫੈਲ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਰਾਧਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਬੋਥ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਵਰ ਕਰਸ਼ਡ, ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇਛਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਰਨ ਐਂਟਰਡ ਹਿਜ਼ ਹਿਦਰਟੋ ਸੋਲ। ਹਾਈਦਰਟੋ ਸੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਧੱਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਹੋਲਡ ਸੋਸਾਇਟੀ and his parents responsible for the frustration of his dreams। ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਫॉर the frustrations of his dreams। ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਹ, ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚਰਨ ਬਾਣੀਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਲਵਿੰਗ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬੀਸਟਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੀਸਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਹੀਮ ਖਾਨ also got married, page number 142। He had of course no choice in the matter। His parents selected the girl, fixed the date, ordered some gaudy clothes for him and some silver ornaments for his bride, made him sit on the horse, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, to the beat of the brass band ਵੱਜਿਆ, took him to the girl's house where the nikah was duly performed। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। To the Qaji's formal questions, Rahim Khan mechanically nodded his head। ਕਾਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ another of course nobody of course cared to ask the shy little girl who sat huddled in the dark room, only dimly occasions of the fate where she had been condemned। After the ceremony, Rahim Khan's father, in the mood of self-congratulations, boasted to his wife, "See how meekly he obeyed me।" ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਰੈਬੈਲੀਅਸ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੇਖ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਜਿੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ 'ਤੇ ਉਤਾਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 142 ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਫॉर 30 years, ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ 50 years ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? For 30 years he had ill treated his wife। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। His children and his bullocks, ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁੰਦੂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੁਲੌਕਸ ਨੇ, ਦੋ ਬਲਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ। quarreled with everyone in the village, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। and made himself the most hated person in the whole community। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। he thought of being so universally detested gave him grim satisfaction। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ for 30 years his wife had submitted to his persecution with slave like docility। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। lately indeed he had become so used to corporal that it seemed
ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਇਫ ਦਾ ਹੋਲ ਵੀਕ ਪਾਸਡ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਬੀਟਿੰਗ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਮਾਈ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, पेज नंबर 44 ਤੇ आओ। तो वो की होया कि वो अपने पेरेंट्स के कोल चली जाती है। तो उस तो बाद हुण रहीम खान कल्ला रह जाता है। वो एक दिन जिदन बहुत उन्होंने कुटदा है, वो जो चली जाती है, वापस आती है, पूछया जाता कि वो आके पूछता है कि घर बंद है, आले दुआले वाले दसते हैं कि तेरी वाइफ तो चली गई हैगी है। नैक्सट डे ही रेज्यूम्ड हिज डेली वर्क, फिर वो अपना अगले दिन अपना काम शुरू कर दिंदा। टिल नो वन टॉक टू हिम इन द विलेज, पिंड दे विच उसनूं कोई नहीं बुलांदा। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट इन द आफ्टरनून ही वुड टॉयल इन हिज फील्ड, सवेर तो लैके शाम तक वो मेहनत करदा। प्लोइंग द फरो, वो हल चलांदा, मतलब कि वो फालियां मतलब हल दे नाल जिहड़ियां वो लाइनां बणियां हुंदियां ना, तुसीं खेतां 'च देखदे जिद्दां ट्रैक्टर चलाया हुंदा ते वो वाले निशान बने हुंदे ने, वो फरो दे नाल, हल दे नाल, प्लोइंग दे नाल वो फरो बनांदा। वाटरिंग द क्रॉप्स, ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਟ ਹੀ ਟਰਨਡ ਹੋਮ ਬਿਫੋਰ ਸਨਸੈਟ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਵੁੱਡ ਲਾਈ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਕੋਟ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਟ ਮੀਨ ਮੰਜੀ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਹੁੱਕਾ, ਆਪਣਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ। ਵਾਚਿੰਗ ਵਿਦ ਲਾਈਵਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਐਂਟਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਸਪੈਰੋ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਰੋ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੋ ਸਪੈਰੋਸ, ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। The two little ones had now grown into young birds, छोटे छोटे जेड़े दो बोट सी चिड़ी दे वो हुण वड्डे हो गए सन, young ones हो गए सन। And he called them Nuru and Bundu after his lost sons, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁੰਦੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। whom he had seen for several years, जिन्हां नूं उन्हें कई साल तो नहीं देखा सी। The four sparrows were his only friends in the world, पूरे संसार दे विच ये चार चिड़ियां ही उहदे दोस्त सन। His neighbors were still frightened of him, अजे भी उसदे गवांढी उस तो डरदे रहिंदे सन। And regarded his recent peaceful behavior with suspicion, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਹੈ। They were genuinely astonished that for some times no one had seen him beating the bullocks, ਪਰ ਹੁਣ ਨੂਰੂ ਤੇ ਬੰਦੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਥੂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਛਿੱਡੂ। were happy and grateful for the bruised bodies and almost healed, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰੂਸ਼ਸ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕੁੱਟ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ the last event of the chapter come to this, page number 144। one monsoon evening, ਇੱਕ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। when the sky was overcast, आसमान ते बदल छाए हुए सन with threatening clouds, बारिश आने की बड़ी संभावना सी। रहीम खान returned from the fields with the little earlier as usual, आम दिनां नालों रहीम खान बारिश देख के जल्दी घर आ गया। he found a group of children playing in the road, सड़क ते कुछ बच्चे खेड रहे सन। they ran away as they saw him, जदों बच्चियां ने रहीम खान नूं देखिया ते वो दूर भज गए। even left their shoes behind in देयर हेस्ट मीन काली, वो काली काली दे विच अपने पाए हुए बूट भी ला गए, बूट सड़क ते छड़ के वो दौड़ गए। इन वेन डिड रहीम खान शाउट, ते रहीम खान चिल्लाया वाई आर यू रनिंग अवे, ओए न्याणिओ तुसी क्यों भज रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू बीट यू, तुहानू कुटांगा नहीं मैं। मीन वाइल इट हैड स्टार्टड ड्रिजलिंग हुंदी बूंदाबांदी शुरू हो गई। एंड ही हरीड होमवर्ड टू टाई अप द बुलक्स बिफोर द बिग डाउनपोर केम। बिग डाउनपोर वड्डी बारिश आंदी, वड्डियां मींह दीयां बूंदां डिगदियां। इस तो पहला फटाफट जिहड़ा रहीम खान सी वो चला गया कि ताकि अपने बलदां नूं थां टिकाणे सिर छत दे थल्ले बन सके। एंटरिंग हिज हट, जदों हुण वो अपनी हट विच दाखिल हुंदा, रहीम खान लाइटर द अर्दन वेयर
ऑयल लैंप। उन्हें अपनी मिट्टी का दीवा जगाया। प्लेस्ड सम क्रम्स ऑफ ब्रैड्स फॉर स्पैरोज बिफोर ही प्रिपेयर्ड हिज ओन डिनर। जोड़ा वो रोटियां सवेरे पका के गया सी, वो रोटियां उन्हें चिड़ियां दे खाण दे लई क्रम्स हुंदा छोटे छोटे टुकड़े करके टेबल ते ला दित्तियां। ओ नूरू ओ बुंदू ही शाउटेड, वो चिल्लाया, उन्हें आवाज़ां मारियां चिड़ियां दे बच्चियां नूं। ओ नूरू ओ बुंदू बट द स्पैरोज डिड नॉट कम, चिड़ियां बाहर नहीं आईयां। एंशियस टू फाइंड आउट वट हैड हैपन टू हिज फ्रेंड्स, वो बड़ी चिंता च आया कि मेरे छोटे छोटे दोस्तों नूं की हो गया है। देखो चेंज है नेचर दे विच, बहुत वड्डी चेंज है। किन्ना वो बीस्टली सी, किन्ना कुटदा मारदा सी, अपने बच्चों नूं इन्ना ज़्यादा कुटदा सी, अपनी वाइफ नूं इन्ना ज़्यादा बीट करदा सीगा। ते अज उहदे मन विच किद्दां इन्हां पंछियां ने, इन्ने बर्ड्स ने, नेचर एक बहुत वड्डी चेंज फैक्टर है। नेचर एक बहुत वड्डा जिहड़ा हैगा हीलर पावर है कि वो बदल भी गया, वो समझ भी गया, वो हील भी हो गया। हुण देखो अगे की होंदा। दिस इज़ द हाइट एंड जेनेथ ऑफ द स्टोरी। ही पीयर्ड इनटू द नेस्ट, उन्हें आलने वाल झाकिया। एंड फाउंड द क्वार्टलेट स्केयर्ड, डरे हुए बच्चों नूं उन्हें देखिया। एंड सेटिंग हडल्ड हुंदा कट्ठे होके बना, हडल्ड कट्ठे होके वो जिहड़े बच्चे सी छोटे छोटे बोट बैठे हुए सी विद इन देयर फीदर्स, अपने खंभा नूं बिल्कुल हडल करके बैठे हुए सी, छोटे छोटे बोट बन के बैठे हुए सी। एट द वेरी स्पॉट वेयर द नेस्ट लाए, जिथे कि वो आलना पिया होया सी। द रूफ वॉज लीकिंग, उत्थों छत लीक कर रही सी, चो रही सी। रहीम खान टोके लैडर हुंदी पौड़ी, रहीम खान ने एक पौड़ी लई। वेंट आउट इन द पोरिंग रेन टू रिपेयर द डैमेज, ते वो जिहड़ा ये डैमेज सीगा, ये जिहड़ा लीक हो रहा सी पानी, वो बंद करन दे लई छत चला गया, उपर नूं चला गया, लैडर दे उपर चढ़ गया। बाय द टाइम जॉब वॉज सैटिस्फैक्टरली डन, उसने सारा काम बहुत वधिया तरीके नाल कर रहा सी। ही वॉज थॉरोली ड्रेंच्ड, हुण वो पूरी तरह नाल भिज चुका सी, बुरी तरह दे नाल। एज ही सैट ऑन द कॉट, जिवें वो आके मंजे ते बैठा। रहीम खान स्नीज्ड हुंदा छिक्का मारनियां, रहीम खान ने छिक्का मारनियां शुरू कीतियां। बट ही डिड नॉट हीड द वार्निंग एंड वेंट टू स्लीप, उन्हें छिक्का नूं बड़ा लाइट लिया, उन्हें सोचा कि कुछ नहीं मैं ठीक हो जावांगा, ते वो सौ गया। नैक्सट मॉर्निंग ही अवोक विद द लिटल फीवर, जिद्दां वो सवेरे उठ्या कि उसनूं हल्का जिहा बुखार सी। वैन द विलेजर्स डिड नॉट सी हिम गोइंग टू द फील्ड्स फॉर सैवरल डेज, पिंड वालियां ने बहुत दिन देखा कि रहीम खान खेतां नूं नहीं जा रहा। रहीम खान बीमार हो गया सी, हुण रहीम खान दी केयर टेकर कोई नहीं सी। हुण चिड़ियां नूं प्यार तां कर सकदियां सी, पर चिड़ियां उहदी केयर नहीं कर सकदियां सी, चिड़ियां उहदी सेहत नहीं देख सकदियां सी, उहनूं रोटी पानी नहीं दे सकदियां सी। हुण इत्थे किस दी लोड़ है? फैमिली एंड केयर एंड चिल्ड्रन एंड वाइफ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਈਡੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਗ੍ਰਿਊ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਕੇਮ ਟੂ ਸੀ ਵਾਟ ਦ ਮੈਟਰ ਵਾਸ, ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। थ्रू अ क्रैक इन द डोर दे सा, उन्होंने चीथ, क्रैक हुंदा चीथ विचों दी, दरवाजे च पई हुई चीथ दे विचों उन्होंने देखिया। लाइंग ऑन द कोट टॉकिंग टू हिमसैल्फ, वो मंजे ते पिया कल्ला ही गल्लां कर रहा सी। ओ बुंदू ओ नूरू हू विल फीड यू वैन आई एम गॉन, जे मैं मर गया तो तुहानू नूरू ते बुंदू रोटियां कौन पाएगा, तुहानू चूरी कौन खिलाएगा। द पीजन शुक देयर हैड्स सिंपैथेटिकली, तो विचारे किसानों भी बड़ा तरस आया, हमदर्दी आई उहदे ते। पूअर फैलो दे सैड, विचारे नाल की हो रहा है। ही हैड गॉन मैड, ये तो बेचारा पागल ही हो गया है। वी विल सेंड फॉर हिज वाइफ टू लुक आफ्टर हिम, असी इहदी घरवाली नूं सुनेहा भेजते हाँ कि आके इसनूं देखे। नैक्सट मॉर्निंग वैन रहीम खानस वाइफ एंक्शियस एंड वीपिंग केम विद हर सन, अगले दिन रहीम खान की वाइफ आती है, उहदे नाल उहदा बेटा भी हुंदा आ, नाल गुआंढी ग्रुप ऑफ नेबरर्स वो भी होंदे ने, कलैक्टेड एंड सिंपैथी, हमदर्दी वजों गुआंढी भी आ जाते हैं। वो वाइफ नूं सद्दा भेजिया तो उस तो बाद वो आ गई है, वो रो रही है। तो डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, अंदरों कुंडी लगी हुई सी। एंड इन स्पाइट ऑफ लाउड नॉकिंग नो वन ओपनड इट, जो बहुत दरवाजा खड़काया, वो रहीम खान इस कंडीशन च ही नहीं सी कि रहीम खान खोल देंदा। दरवाज़ा अंदरों बुरी तरह बंद सी, रहीम खान मेरा ख्याल कि ख़त्म ही हो चुका सी। वैन दे ब्रोक
देयर वे इन, जदों उन्होंने दरवाज़ा तोड़िया अंदर गए, दे फाउंड द लार्ज एंड गाउंट फ्रेम ऑफ रहीम खान लाइंग इन द ब्रूडिंग साइलेंस ऑफ द रूम। कमरे विच एक बड़ी शांति पसरी हुई सी ते जिहड़ा रहीम खान गाउंट GAUNT शब्द हैगा, गाउंट फ्रेम मतलब हुंदा एक वड्डा सारा जिस्म। रहीम खान बहुत लंबा सी, 6 फुट लंबा सी, एथलीट सीगा, रैसलर सीगा, कबड्डी प्लेयर सीगा। ही वाज उहदा जिहड़ा स्ट्रैचर सीगा वो कोई आम नहीं सीगा, वो 6 फुट लंबा सीगा। ते ओ ही टर्नड पेल एंड वीक, ते ओ बड़ा कमज़ोर होया ते उहदा रंग पीला पै चुका सी, मतलब उहदी डैथ हो चुकी सी। इन द रूम ब्रोकन ओनली बाय द फ्लटरिंग ऑफ द 4 स्पैरोज़। ते जिद्दां ही दरवाज़ा खुल्लिया ते जड़ियां 4 चिड़ियां सी बेचारियां उहदे आले दुआले बैठियां होईयां, दौड़ के जड़ियां सी वो बाहर नूं दरवाजे खुल्ले दे नाल ही निकलियां। दिस इज़ वैरी ट्रैजिक एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ स्पैरोज़ बाय रहीम खान। अगे दे छोटे जे क्वेश्चन है, थानू मैं थोड़ा जिहा दस दिंदी हां। वैसे तो क्वेश्चन सारे ये आ गए ने। वॉट वॉज रहीम खान's ऑक्यूपेशन? बेटे ऑक्यूपेशन OCCUPATION ऑक्यूपेशन हुंदा कित्ता। रहीम खान दा कित्ता की सी? ही वॉज पीजेंट, वो किसान सीगा। ही वॉकड विद हॉटी एंड अनफ्रेंडली ईयर। हॉटी हुंदा प्राउड, अनफ्रेंडली किसी दे नाल जिहड़ा फ्रेंडली ना होना, गुस्से दे विच होना। वट डज सुजैसट अबाउट द रेपूटेशन इन द विलेज? इट शोज दैट हिज रेपूटेशन वॉज वेरी बैड, वेरी वर्स। पीपल वर स्केयर्ड ऑफ हिम, लोग उस तो डरदे सीगे, हेट करदे सी। ही वॉज हेटेड फिगर इन द विलेज। वट डज फ्रेव कॉशियस विस्पर्स सुजैसट अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द विलेजर्स टुवर्ड्स रहीम खान? जदों कॉशियस विस्पर्स कन्नां विच जदों लोग फुसफुसाउंदे सी, इस तो की भाव सी? ये रिस्पैक्ट सी, फीयर सी, मिक्सचर ऑफ बोथ। रिस्पैक्ट नहीं सी, ये फीयर सीगा। द अदर डे वेरी नियरली किल्ड माई मेयर सैड द जैलदार। जैलदार ने कहा रहीम खान ने मेरी घोड़ी मार दी। वॉज रहीम खान एंटायरली टू ब्लेम? कि सारा ब्लेम रहीम खान ते लाया जा सकता? नो। जेड़े सीगे ना शरारती मुंडे, उन्होंने जान के रहीम खान दे खेत विच घोड़ी छड़ दी सी कि रहीम खान कुट्टे ते पिंड च इहदा मौजू बने। रहीम खान वॉज नॉट एंटायरली टू ब्लेम। दिस इज़ आंसर। वॉट न्यूज़ डिड रहीम खान गेट ऑन रिटर्निंग टू हिज हट? हैड हिज वाइफ लेफ्ट हिम? वॉज शी विजिटिंग हर ब्रदर? जदों रहीम खान वापस अपनी झोंपड़ी च आंदा है तो उहदी वाइफ उहनूं छड्ड गई सी कि जां अपने भरावां नूं मिलन गई सी? वो छड्ड गई सी। इहदा आंसर आना है हिज वाइफ लैफ्ट हिम, उहदी वाइफ उहनूं छड्ड गई सी। वॉट वॉज रहीम खान's रिएक्शन वैन ही हर्ड हिज वाइफ हैड गॉन अवे? जदों उसने सुनिया कि उहदी वाइफ चली गई है, उसनूं की होया? रिलीफ, अनहैप्पीनैस, एंगर, डिसकंफर्ट। देखो ये सारे ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ शब्द रिलीफ पॉजिटिव आ, बाकी सारे नैगेटिव वर्ड है। ਉਹਨੂੰ गुस्सा चढ़ गया, ਉਹਨੂੰ एंगर ਦੀ फीलिंग आई। वॉट वॉज रहीम खान's एंबिशन एज अ यंग मैन? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी दसिया कि ही वॉन्टेड टू मैरी हिंदू गर्ल नेम्ड राधा and he want to join touring circus. Why was Rahim Khan not able to join touring circus? Because his parents did not allow him. ना तानू कुड़ी ना विआह कराउण दी आग्या दित्ती ते ना ही उन्हों touring circus join करन दित्ती. In case you want any more questions regarding this chapter, about the character, about the theme or about the other questions, you can ask me. Thank you very much.